Namaste to all. Today we're gonna study about the Economic and Political Weekly magazine, volume number 60, issue number 26, 27, 28. These issues are together and we will be studying together. See, number of slides are 43, in which there are numerous articles which we are going to study. So let's start with the first article. Our first article is about the measures and the mirrors. This article highlights the Supreme Court verdict on the subcategorization of SC and STs. To understand the better, let's see what are the issues. See, article 14 talks about right to equality. Article 15 talks about right to have equal protection before law. While Article 16 talks about opportunity. And this article suggests government or advises government to create a policy that are suitable for the vulnerable section of the society, that is SC, STs, women, etc. Within this, we also have reservation system. And reservation is not a fundamental right, first of all. It has been constitutionally created up to first 10 years, but after the independence, there has been the populist measures like voting pattern, and also the condition of the SCs and STs has not improved to much extent. So it continued. But now there is a debate among the higher circle of judiciary as well as the lower circle of judiciary that there should be subcategorization of SC and STs. However, the Telangana government is the first government who have opted for the subcategorization of STs and SCs. So there has been anger among the leaders which belongs to the SCs and ST community, and some other who favors the SC and ST welfare, that there must not be the subcategorization, because the basis of the reservation was not economic. If we talk about the early days of reservation, but when EWS reservation was given, it was purely based on economic and social condition. But SCs and STs are not based on the economic condition, but it was based on the discrimination faced by these communities in history. And even today, there has been the cases of discrimination. But the judiciary is thinking that the benefit of the reservation is, and रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन से बच रहे हैं. डिस्क्रिमिनेशन से तो बचना इट्स अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी. ये सोसाइटी का एक ओवरऑल अपलिफ्टमेंट होना मैटर करता है. बट जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं, जो रिजर्वेशन के थ्रू जो बेनिफिट मिल रहे हैं, नौकरी वगैरह, ये सब सर्टेन कास्ट तक ही लिमिट रहते हैं या फिर सर्टेन क्लास तक ही लिमिट रहते हैं विद इन द एसटीज. एंड जो एकदम लोअर सेक्शंस हैं एससीज एंड एसटीज में, उन तक ये बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है. तो उसके लिए जो है सब कैटेगराइजेशन सजेस्ट किया जा रहा है. दोनों बातें मैंने आपको बता दी.
कि एक तो रिजर्वेशन सोशल इशू पे बेस्ड है, SC ना ST का, नॉट ऑन इकोनॉमिक। EWS का इकोनॉमिक पे है, बट फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ SCs एंड STs, how it will benefit the SCs and STs, time will only tell. The same thing is written here. जो रीसेंट कास्ट सेंसस हो रहा है उसमें भी ये चीज़ें हाईलाइट की जाने वाली है शायद. The Supreme Court verdict in Davinder Singh versus State of Punjab recognizes the permissibility of subcategorization within these groups, with state like Telangana already acting on it, and parties informally recognizing SC subcaste as in Karnataka. The political logic may soon follow the legal one. A caste census would provide the empirical foundation for such a shift. तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है, देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. स्टेट ऑफ पंजाब इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने परमिसिबिलिटी दे दी है सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट के लिए. और जो कुछ स्टेट हैं जैसे तेलंगाना हो गया, कर्नाटका, वो धीरे धीरे इसको फॉलो भी कर रहे हैं. एंड मे भी ये हो सकता है कि लीगलिटी भी इसको मिल जाए धीरे धीरे. एंड ये बोला जा रहा है कि जो मार्जिनलाइजेशन हुआ है इक्वली शेयर्ड नहीं हो रहा है. देखो मार्जिनलाइजेशन तो हुआ है बट इक्वली शेयर्ड नहीं हो रहा है. इस पर डाउटफुल होता है क्योंकि द बेसिस ऑफ द रिजर्वेशन वाज द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन हैपेंड इक्वली टू द SCs एंड STs, जिसको अछूत बोला जाता था, अनटचेबल बोला जाता था. बट राइटर कह रहे हैं कि इक्वली शेयर्ड नहीं हुआ. इक्वली शेयर्ड इस सेंस में नहीं हुआ कि जो उसका जो बेनिफिट जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया वो इक्वली शेयर्ड नहीं हुआ, बट जो डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं वो तो इक्वली शेयर्ड हुआ है. मतलब एक थिक स्किन देखा जाए तो इक्वली शेयर्ड हुआ है क्योंकि सबको एक ही कैटेगरी से देखा जाता था अछूत, वेदर इट्स चांडाल और ये कोई भी कैटेगरीज हो. हाँ, सबके साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार होता था. तो वही चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ अपना डिसीजन ले रहे हैं बट सेंटर क्या करेगी इसको देखना जरूरी है. द कास्ट सेंसस कुड ग्राउंड दिस डेफिनेशन इन कंटेम्प्रेरी comprehensive data rather than historical assumption or the political pressure. हो सकता है कि इमेंस पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना हो इस चेंजेस को लाने के लिए. तो बेसिकली ये रिजर्वेशन से रिलेटेड इशूज है एंड कास्ट सेंसस में हो सकता है कि इस तरह के डेटा का इंक्लूजन हो, एंड इसके लिए एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है. एंड सुप्रीम कोर्ट इन देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में परमिसिबिलिटी देख रही है ताकि ये फ्यूचर में एक लीगल टर्म्स हो जाए. एंड ये इससे क्या होगा कि एक सोसाइटी में जो विद इन द कास्ट जो है डेमोक्रेटिक सेटअप का होना वो भी फिजिबल होता है. अगेंस्ट आर्बिट्ररी बुलडोजर डेमोलिशन. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है जुल्फिकार हैदर वर्सेस एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स directed UP government authority to pay 10 lakh compensation to each of the petitioner whose home were demolished by the state without providing the resident ample notices or an opportunity to appeal. See, अभी कुछ दिनों पहले या फिर कुछ सालों में बुलडोजर जस्टिस जो है बुलडोजर जस्टिस was seen in news and it was mostly led by the UP government by the CM Sri Adityanath Yogi, and later it was followed in Rajasthan, then in MP and other state too like Maharashtra, sometimes Karnataka, etc. But recently Supreme Court has suggested in the Julfikar Haider versus another and another versus state of Uttar Pradesh. State of Uttar Pradesh.
तो इस केस में सजेस्ट किया गया है कि जो बुलडोजर से जो जस्टिस कर रहे हैं, तो राइट टू शेल्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का। राइट टू शेल्टर इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, एंड इट इज़ अ बेसिक राइट एंड स्टेट कैन नॉट डिनाई दैट। एंड इस केस में क्या हो रहा है कि जुल्फ़िकार अहमद वर्सेस अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ जुल्फ़िकार अहमद एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाले केस में यहाँ पे स्टेट क्या कर रहा है कि उसके जो शेल्टर है उसको डेमोलिश कर रहा है। एंड उसके डेमोलिश करने का रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग कि मोस्टली तो रीज़न ये देखा जा रहा है कि जो दंगे में इन्वॉल्व होते हैं, राइट्स में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर किसी भी तरीके से उपद्रव मचाते हैं, स्टोन पेल्टिंग करते हैं, तो उन सारे लोगों को पकड़ के शक के बिना पे उनके घर को तबाह किया जाता है, शेल्टर उजाड़ दिया जाता है। तो इस ये जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, इस केस में यूपी गवर्नमेंट को 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया एंड कंपनसेशन के रूप में हर एक जो जिसका घर गुजारा गया तो उसको 10 लाख रुपये दे एक एक को। एंड राइट टू शेल्टर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट समटाइम्स क्या करती है कि सो कॉज नोटिस सो मोटो एक्शंस लेती है, बट इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट का जो डेमोलेशन है इट्स इन ह्यूमन कंडक्ट। हाँ, जो भी चीज़ें गलती हुई है उसके लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप टाइम दीजिए उनको कि पेपर दिखाने का। एंड विदाउट प्रायर नोटिस यू कैन नॉट जस्ट डिमोलिश हाउस। तो इसी केस में एक प्रयागराज का केस है, जब वहाँ पे शो कॉज नोटिस दिखाया गया था अंडर द यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। एंड मेन इशू यही है कि जो बुलडोजर जस्टिस हो रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो द वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। The changing fertility behavior. The changing fertility behavior, the article highlights the role of the fertility in India's growing society. It's not only about the fertility in women but also about the fertility in men. And the data has been changing, especially in space dimension as well as time dimension. In terms of space, if we see the India's mapping, the states like Bihar have TFR around 3.1, UP it's 2.9, and overall India's TFR is 2. And southern states have TFR much lesser than this northern states. See here, in Bihar, for example, the average number of children per woman is still 3, while is Meghalaya is close behind 2.9, Jharkhand and UP 2.3. Sorry, I have given the wrong data. Bihar 3, UP 2.3, and Jharkhand 2.3, Meghalaya 2.9. Manipur is at 2.2, all above the replacement level of 2.1. And it is one of the major concerns that these societies are adolescent societies. Also, the number of girls or the sex ratio in these areas are relatively low, while in southern states the TFR is less but sex ratio is high. And also the child bearing dynamics or the parenting dynamics is changing. The 41% of women and the 33% of men prefer 2 children. Only a small share prefer 1. Okay, mostly the people prefer the 2 children rather than 1.
And also there is a case of infertility, which is around the 3.9 to 16.8% of the India's population. It is a topic which is certainly surrounded around the woman, but not around the men. But data reveals something else. It is also found men men के केस में infertility पाया जाता है. And these are the reasons which led to the creation of various IVF centers, which takes crores, lakhs and lakhs of rupees for childbearing. So this is all about this article. Moving to the next article. Citizenship weaponized and right tonight. Recently, while the Rohingya drive was carried out, in this case, the various Assamese peoples were pushed to the borders, which actually have the Indian citizenship, and the High Court take the suo motu action and said that the government actions are not up to the rule of law and it should not be there. The Indian citizens should not be sent to the borders, and while doing so, there should be the utmost care. सी हुआ क्या है कि महाराष्ट्र में जो रोहिंग्या ट्राइब चल रहे थे, जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी माइग्रेंट्स थे जो इंडिया में इलीगली बस रहे थे, उनको क्या कर रहा था कि पुलिस जो है सर्च कर करके 1-1.5 महीने का टाइम अल्टीमेटम दिया गया था हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा कि सर्च कर करके आपको सीधे बॉर्डर के उस पार भेजा जाएगा. तो उस केस में क्या हुआ कि मुंबई से तो एसमीज एंड बंगाली स्पीकिंग पीपल्स स्पेशली मुस्लिम्स वेर सेंट टू द अदर स्टेट्स, एंड असम में भी वहाँ की पुलिस ने उसको बॉर्डर के पास धकेल दिया. जब ऐसा कुछ आया हाईकोर्ट के संज्ञान में, तो हाईकोर्ट ने तुरंत एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट के इस डिसीजन को रिव्यू करने का आदेश दिया. दिस इज द very specific article, especially related to the state of Assam, where according to NFHS data, the number of daughters or the sex ratio is reducing. कुछ एरियाज हैं जैसे कि see, conventionally the northeastern region of India is perceived as a comparatively advanced in gender related developmental outcomes, leading to the expectation that Assam would demonstrate favorable condition regarding the survival and status of the woman. एंड ये आर्टिकल क्या कर रहा है कि NFHS 2015-16 4 और 5 दोनों के डेटा को कंपेयर कर रहा है, एंड इससे ये रिविलेशन हुआ कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो कम हो रही है इन केस ऑफ असम. अमृत सेन 1992 में जो सेक्स रेशियो कम हो रही है, तो इसको हाईलाइट करते हुए द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन लिखे थे, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि द डेफिसिट ऑफ द वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरली ड्यू टू द सेक्स बाइस के कारण वुमेन कम है डेवलपिंग कंट्रीज में, प्राइमरली ड्यू टू द सेक्स बाइस, कंट्रेरी टू द कॉमन assumption that women constitute half of the global population. Sen revealed that the men significantly outnumber women. The misconception originates from the demographic profile of the Western nation, mainly Europe and the United States. In contrast, the situation in many parts of the Asia, Africa, and Latin America is grim. These regions experience a severe deficit of women, mainly attributed to the disparities in the mortality rate. These discrepancies underscore how differential access to essential services such as healthcare, nutrition, and social security, as well as the general agency of women, can lead to the stark variation in sex ratio. And the phenomena of the missing girl start with the missing girl at the birth, and this situation is probably observed in case of Assam. चूंकि एक स्टेट स्पेसिफिक है तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो अमृत सेन का जो डेटा आप लोगों को दिखाया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन. एंड उससे पहले जो ग्लोबल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 जो है जेंडर इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट, सर्टेन स्टिकी डोमेन रिमेन्स बट जेंडर डिस्पैरिटी प्रूव्स particularly intractable.
तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ वी सी इन टर्म्स ऑफ द फूड सिक्योरिटी। कैसे फूड सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सकता है इंडिया में, जबकि ऐसे सिचुएशन में जबकि इन्फ्लेशन का खतरा हमेशा लगातार बढ़ते जा रहा है एंड इनकम आर ऑफ द पीपल आर नॉट इंक्रीजिंग एट पार विद द इन्फ्लेशन। तो इस केस में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, उसके फूड इंटेक को कैसे ध्यान में रखा जा सकता है, जैसे कि एक तो न्यूट्रिशनल बैलेंस मिले ही मिले एंड साथ ही साथ जो फूड का जो डिमांड है, कुक फूड का डिमांड, उसको भी सेटिस्फाई करे। इसी को देखते हुए जो राइटर हैं यहाँ पे दो केस स्टडी लिए हैं। एक तो फर्स्ट है अम्मा कैंटीन, दूसरा है अन्ना कैंटीन। अन्ना इज इन द आंध्र प्रदेश रीजन, एपी रीजन, वाइल अम्मा इज इन द तमिलनाडु रीजन। दोनों एक मॉडल है जहाँ पे कि सब्सिडाइज प्राइस पे एकदम लोअर अमाउंट पे जो है आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है। चीपेस्ट जितना भी बोल सकते ₹5, 10 पर प्लेट, ₹1 पर प्लेट, इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सी एस्टिमेट्स फ्रॉम द लेटेस्ट NFHS डेटा alarming nutritional disadvantages among the urban poorer compared to the counterpart। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि एक न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है अर्बन पुअर में, वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रही है, जो कि NFHS डेटा में भी हाईलाइट हुआ है। एंड इसी चीज़ का सॉल्यूशन के रूप में आता है अम्मा कैंटीन एंड अन्ना कैंटीन। देखिए, आर्टिकल स्टार्ट होता है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट से। जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है हमारा डेटा में तो इम्प्रूव हुआ है, बट जो ओवरऑल जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है ये अभी भी कम है, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं लाइक स्टंटिंग, वेस्टिंग एक्सेट्रा। देखिए, 19th हाई लेवल panel of expert reports highlight that higher proportion of the rural population is undernourished and food insecure than its counterpart. However, HLPE also provides an indication that the comparison of rural and urban average mask diversity existing within urban-rural areas, especially in large metro cities, which are home to nearly 42% of urban population। जो अर्बन मेट्रो सिटीज़ में लोग रह रहे हैं, मेट्रोपोलाइजेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, World Urbanization Prospect suggests that in India, the more than 460 million people already live in urban areas। अभी तो 460 मिलियन लोग इंडिया में रह रहे हैं ऑलमोस्ट। देखा जाए तो बहुत सारे लोग, 460 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, 460 मिलियन 46 करोड़ पीपल आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, जो कि ऑलमोस्ट 34% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन है, एंड इट विल बी अराउंड 40% बाय 2036। एंड ये जो पॉपुलेशन है हमारा क्या फेस कर रहा है, हंगर फेस कर रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फेस कर रहा है। NFHS के एस्टिमेट के अनुसार कि द प्रिवेलेंस ऑफ क्रोनिक अंडरनरिशमेंट अमंग चिल्ड्रन इज 30% इन अर्बन एरियाज, जबकि 37% है रूरल एरिया में। और जो आदमी हैं 15 से 49 वर्ष के बीच, 13% आर अंडरवेट इन अर्बन एरियाज, जबकि 18% इन रूरल एरियाज। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट जो है हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट हैं, स्पेशली तमिलनाडु। एंड ये स्टेट कैसे अर्बन जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको कैसे कैटर करते हैं, इसके लिए है अम्मा कैंटीन। एंड सिमिलरली देयर इज अन्ना कैंटीन इन आंध्र प्रदेश। बेसिकली देखिए, फूड सिक्योरिटी की जब भी बात आएगी तो हम लोग एक FAO का फॉर्मूला होता है कि अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबल है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल है कि नहीं, थर्ड है एसेसिबिलिटी, एंड जो फोर्थ है ये है इन सब की स्टेबिलिटी। ये जो FAO का
फॉर्मूला इन केस ऑफ फूड सिक्योरिटी। जब ये तीनों चीज़ होती है तो फूड जो है, फूड सिक्योरिटी मेंटेन होता है। फूड सिक्योरिटी की चिंता उस देश में नहीं होती। तो ये सब तीनों चीज़ देखना पड़ेगा जब हम लोग फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे। रीजन बहुत सारे हैं फूड सिक्योरिटी, और मैनेज करने के लिए सॉल्यूशन भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे अम्मा अन्ना कैंटीन एक एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रिविजिटिंग द अमेंडमेंट डिबेट। देखिए ये आर्टिकल क्या कर रहा है कि अमेंडमेंट डिबेट को हाईलाइट कर यूएसए और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैसे अमेंडमेंट, क्या फ्रेमवर्क है, उसको लेके ये आर्टिकल लिखा गया। तो आइए चलिए समझते हैं कि यूएस और इंडिया में अमेंडमेंट डिबेट क्या है। देखिए इंडिया के बारे में हम लोग जानते हैं, यूएस के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल, जबकि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड माना जाता है। एंड यू हैव टू माइंड थिंग्स हियर कि यूएसए में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे टेक्सास हो गया, जब यूएस का जब हम लोग मैप बनाते हैं, इधर कुछ अलास्का हो गया, इधर यूएसए का कुछ ये, तो डिफरेंट स्टेट्स हैं। जैसे ये वाला पार्ट कैलिफोर्निया हो गया, ये हो गया फ्लोरिडा हो गया, इधर साइड न्यूयॉर्क हो गया, मियामी हो गया, एलए हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट हैं एंड सब के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एंड तो यूएस में क्या होता है कि इंडिया में एक पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकता है, कोई स्टेट नहीं कर सकता है। जबकि यूएस में जो डिफरेंट स्टेट है उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें जो करना चाहे कर सकते हैं। बट जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए की, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यदि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना होगा तो उसमें एक रूल है नेशनल कन्वेंशन का, नेशनल कन्वेंशन। एंड थ्रू दिस जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो नेशनल कन्वेंशन के थ्रू आ सकते हैं एंड यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं। जबकि इंडिया में स्टेट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, स्टेट डू नॉट हैव सच पावर। एंड ये बात भी ठीक है कि नेशनल कन्वेंशन का यूज़ अभी तक, जो 200 साल की हिस्ट्री रही है इन यूएसए की, 200 से 300 साल की जो भी हिस्ट्री रही है अभी तक, उसमें एक भी बार जो यूएस में नेशनल कन्वेंशन का यूज़ नहीं किया गया। तो ये तो डिफरेंस हो गया आपको। थर्ड है कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। इंडिया में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। यूएसए में जो यूएसए की कांग्रेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है एंड प्रेसिडेंट के भी पास पावर होता है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कुछ चेंजेस ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तो एक मेन डिफरेंस हो गया। दूसरा है कि सिंपल मेजोरिटी, फ्लेक्सिबल। अभी तक यूएसए में जो है ऑलमोस्ट 17 टाइम्स ही अमेंडमेंट हुए हैं, 17 बार ही ऑलमोस्ट अमेंड हुए हैं जो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि इंडिया में नंबर ऑफ न्यूमरस अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की संख्या बहुत सारी है इंडिया में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया एंड यूएस। तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। मूविंग टू द आशा कॉन्डोम। देखिए आशा जो वर्कर्स होते हैं, अंत्योदय क्या बोलते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा को जो बोलते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एंड इसका बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द न्यू लाइफ, ब्रिंगिंग न्यू लाइफ ऑन द अर्थ। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हैं उसमें बच्चे का, तो उसमें जो है आशा का क्रिटिकल रोल होता है। एंड जो कुछ रूल लाया जा रहा है इसमें क्या बोला जा रहा है कि आशा वर्कर बोल रहा है कि जो सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह की बेनिफिट होती है आशा वर्कर को मिलती नहीं। एंड
See here, despite their indispensable contribution, ASA workers have denied adequate social security benefit and the fair remuneration due to their classification as volunteers rather than employee. बोला जाता है कि आशा वर्कर्स को जो है ना वॉलंटियर्स के तौर पर लिया जाता है, volunteers, and it does not constitute the employee. It does not constitute employee, it's considered as a volunteer. And volunteers को जो है जो बेनिफिट होती है एक एम्प्लॉयर के लिए या फिर एम्प्लॉय के लिए, वो बेनिफिट वॉलंटियर को नहीं दिया जा रहा है. तो इसी को लेके एक जो आशा वर्कर थी, धनौली नागरिक मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, तो इसी केस को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आशा वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की हिस्ट्री में या फिर इंडिया की ग्रोथ में, तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. तो दिस आर्टिकल डिस्कसेस दिस, नॉट मच टू बी डिस्कस. द ऑबिचुरी ऑफ लिटरेचर. द ह्यूमैनिटी discipline, particularly the literature and the philosophy, are facing a disintegration and rising neoliberals and market-oriented academic paradigm, administrative indifferences, and the rational mired in spreadsheets, cost-benefit analysis, gradually burying discipline's foundational critical judgment, empathy, and democratic thought. बोला जा रहा है कि जो आर्ट्स हैं, आर्ट सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट सब्जेक्ट हैं, फिलोसफीज हैं, और भी डिसिप्लिन आते हैं आर्ट सब्जेक्ट के अंदर. क्या हो रहा है कि बहुत सारे यूएसए के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इन डिपार्टमेंट को बंद किया जा रहा है. द रीज़न बीइंग कि दे आर सब्जेक्टिंग द क्रिटिकलिटीज़ ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स. एंड इससे क्या हो रहा है कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, एक सोसाइटी में जो आर्ट का इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है. यही चीज़ इसमें एड्रेस किया गया है. जो लिटरेचर है, आर्ट है, उसका एक डेथ होते जा रहा है, एपोक्लिप्स होते जा रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. Moving to the next article, the credit growth or NIM, national, let me see. The implication of robust credit growth for Indian bank, particularly on asset yields, cost of funds, and the balance sheet, are examined. The decline in the net interest margin have been stronger for bank with a faster asset growth. Private sector bank earn a higher spread between fresh loan and deposit. The risk bank faces while the portfolio structure is in response to the pressure on NIM. नेट इंटरेस्ट मार्जिन. बोला जा रहा है कि जो क्रेडिट ग्रोथ तो बैंक की बढ़ी है, बट प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक का जो स्प्रेड है वो ज़्यादा बढ़ा है इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर्स, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जो प्राइवेट्स के हैं वो जल्दी रिकवर हो जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक. एंड इस चीज़ को डिटेल में इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे. वैसे भी ये रिसर्च आर्टिकल है तो इसको अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर. See, conflict over water, this is not a new problem, and with the beginning of the 21st century the problem of water has been on the table. The reason being कि water का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होते जा रहा है. सबसे पहला तो वाटर का क्वालिटी डिग्रेड होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन. एंड इससे क्या हो रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है. एंड इवन फॉर एग्रीकल्चर इट हैज़ बिन रिड्यूसिंग. एंड रिसेंट जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो एवेंस में डाल दिया गया है इंडिया के द्वारा, इससे पाकिस्तान के जो है एग्रीकल्चर्स एंड अदर सेक्टर्स पे एक ग्रेटर इम्पैक्ट होगा सूनर और लेटर. Not only India, even within the states, if we observe the states like Punjab, Delhi, हरियाणा, दिल्ली, फिर साउथ में जाएंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ओवर कावेरी इशूज. तो ये जो वाटर प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. डिफरेंट रीजन्स हैं. एंड आर्टिकल 262 के अंदर जो है वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग आर्टिकल्स हैं जो कि स्टेट के बीच में जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए.
कमीशन बनाएंगे स्टेट जो है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ये यूनिक केस आया है फ्रॉम द डेवलप्ड स्टेट लाइक तमिलनाडु, जहाँ पे कि ऑनर किलिंग हुआ है. एक दलित मैन को की शादी. The endogamous nature of the marriage in India sustains a caste hierarchy. Notion of the honor are believed to be compromised if a woman violates caste norms through intercaste marriages. More so with the Dalit man. This article delves into the complex interplay of caste and gender dynamics within the judicial process concerning the homicides of 3 young Dalit men from Tamil Nadu. अभी कास्ट के इशू को लेकर 3 जो है दलित मैन का जो है होमिसाइड हुआ है, क्योंकि वो जो है अपने से हायर कास्ट की लड़की से शादी रचाई. तो कास्ट जो सोसाइटी में घर करके बैठा हुआ है, उसका इम्पैक्ट हर जगह पे है. एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इंडियाज म्युनिसिपल फाइनेंस सिस्टम एट अ क्रॉसरोड, अ रूल फॉर 16 फाइनेंस कमीशन. 16 फाइनेंस कमीशन को हम लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल जो ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स उसमें भी कवर किया था. सो आई एम लिविंग दिस आर्टिकल. I am leaving this article because we have covered in previous article of EPW. Check previous issues of EPW. This is the book written by. The book is Emperor Sand and the People Revisiting Deccan History, edited by Muhammad Nazrul Bari and R. Arjun. तो ये जो है डेक्कन के रीजन में जो लाइफ थी उसके बारे में ये बुक लिखी गई है. एंड ये सिर्फ बुक ही है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल मेंशन किया हुआ था एपीडब्ल्यू में, सो मैंने कंसीडर कर लिया. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. पेरिल ऑफ केयर वर्क. ये भी बुक है. डेप्लीशन द कॉस्ट ऑफ केयरिंग बाय शिरीन एम राय, न्यूयॉर्क. इसमें बेसिकली केयर वर्क के बारे में बताया गया है, जो केयर इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया था 2023 में. तो केयर वर्क की वैल्यू इंडिया में क्या है, बाहर में क्या है, केयर इकोनॉमी की वैल्यू क्या है, तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. हाउ केयर सेफ वर्क होम वर्कर्स इन द लेदर वैल्यू चेन तमिलनाडु. बोला जा रहा है कि ये बेसिकली लेदर इंडस्ट्रीज जो तमिलनाडु में फंक्शन कर रही है, तो वहाँ पे जो वर्कर्स जो काम करते हैं, वर्कर के साथ जो फैमिलीज रहती है, फैमिलीज स्पेशली वुमेन्स, वो केयर वर्क में भी इन्वॉल्व होती है. होम जो घर के काम काज होते हैं उनमें भी इन्वॉल्व होती है. तो उसका जो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है वो क्रिटिकल है, स्पेशली व्हेन दे आर माइग्रेंट्स. एंड केयर वर्क को जब इंपॉर्टेंस मिलने लगेगा तो इकोनॉमी में जो इंक्रीज होगा, जो जिसकी बात करते हैं हम लोग केयर इकोनॉमी की, तो इससे क्या होगा कि लाइफ स्टैंडर्ड एंड लिविंग स्टाइल भी सुधरेगा. एंड दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, गुड ह्यूमन कैपिटल. एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से क्या होगा कि हमारी जो सोसाइटी में उसमें कंट्रीब्यूशन जाएगा, जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन जाएगा. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. जो वुमेन के साथ क्या समस्या है, देखिए नेचर ने वुमेन को रिप्रोड्यूस करने के लिए चुना है, नॉट द मैन. मतलब रिप्रोडक्शन तो दोनों के साथ से ही होता है, बट देखिए वुमेन हैज़ टू कैरी द बेबी इन द यूटेरस. तो ये क्या करता है, एक यूनिक चैलेंज प्रेजेंट करता है, स्पेशली व्हेन द वुमेन इज वर्किंग. एंड जब ये वर्क जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स में आता है तो ये चैलेंज और भी मल्टीफोल्ड हो जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है. तो जो एम्प्लॉयर हैं तो वो किसी भी सिचुएशन में लीव नहीं देना चाहते हैं. एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी इफेक्ट होती है, एंड बच्चा
जो गर्भ में रहता है उस पर भी इम्पैक्ट होता है उसके, क्योंकि माँ को रेस्ट नहीं मिलता है, एंड उसकी वजह से जो चिल्ड्रन है उस पर भी इम्पैक्ट होता है। एंड फिर जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद भी वर्क करना, इट्स ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट। इवन जो कि हाई क्लास वुमेन होती है, द वर्किंग वुमेन विद गुड बैकग्राउंड, उसके लिए भी चैलेंजिंग होता है। तो जो इनफॉर्मल होगी उसके लिए कितना चैलेंजिंग होगा। द क्रीच फैसिलिटी नहीं होती है, चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन देने के लिए रहना पड़ता है, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए बच्चे की। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ये अगेन तेलंगाना पे बेस्ड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, नॉट स्पेसिफिक, not to be paid much attention. Moving to the next article, why do women fare in manufacturing work? See, evidence from the recent employment survey indicates that there was a distinct worsening both the quantitative and the qualitative aspects of employment after 11-12. Post-COVID, the employment situation has shown remarkable improvement with the work participation of the women recovering significantly. तो ये एक रिसर्च पेपर बेस्ड है कि 2017 से कंपेयर किया जा रहा है कि वुमेन का क्या परफॉर्मेंस रहा है इन कंपैरिजन टू 2017 based on the PLFS. डिटेल में देखेंगे व्हेन वी विल स्टडी द इकोनॉमी सेपरेटली। बेसिकली ये कंपेरिजन एंड रिसर्च डेटा है, तो इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस है कि PLFS के डेटा को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि क्या परसेंटेज रहा है, क्या रहा है, नहीं रहा है, एंड यूज दिस इन द एग्जाम। उतना रिसर्च में जाने की जरूरत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एनालाइजिंग द स्कोप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनपेड, वही अनपेड एंड पेड लेवल वर्क के बारे में बताया गया कि कौन सा वर्क जो केयर इकोनॉमी वगैरह रहती है वो अनपेड है। डिफरेंट टाइप ऑफ केयर वर्क होता है, जैसे कि चिल्ड्रन का टेक केयर करना, एल्डरली का टेक केयर करना, जो बीमार है उसका टेक केयर करना, एटसेट्रा। ये आसाम से रिलेटेड है कि इनफॉर्मल वर्क और चाइल्ड हेल्थ केयर इन आसाम। जो रीजनल आर्टिकल है उसको अवॉइड करते हैं, हालांकि केस स्टडी के केस में यूज़ कर सकते हैं, बट इतना रिसर्च दिया हुआ है ना, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। द की टू लव लाइफ एंड लॉन्गिंग, फिल्म के बारे में है ये, नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस। पर्सनल स्टोरी है कुछ, नॉट इम्पोर्टेंट। फ्रॉम साइलेंस टू ग्रोथ, कास्ट मेमोरी एंड रेजिलियंस इन वाटर इन द ब्रोकन पॉट, अगेन इट्स अ टेस्टामेंट बेस्ड स्टोरी, नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। जहाँ पे एक सोशल मुद्दा रहेगा वो उसी टॉपिक्स को कवर करेंगे। हाँ, ये है PLFS डेटा, वही चीज़, क्योंकि 3 इशू को मिला के ये बनाया गया, तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल इमर्ज हो रहे हैं। See, the female labor force participation rate in India is still half of the LFPR of men as far as the global average. Female LFPR of 47.2%. However, in recent round of the periodic labor force survey reveals that there has been a significant uptick of the FLFPR, especially in post-COVID-19 period. This paper highlights tries to analyze whether this surge in the LFPR of the women is driven by improvement in labor market opportunities or by the distress situation induced by the pandemic. ओके, बोला जा रहा है कि पोस्ट कोविड के बाद जो है लेबर फोर्स जो है वुमेन के लिए राइज हुआ है, वुमेन के रिगार्डिंग। तो रीजन एक्सपेक्टलेट किया जा रहा है कि या तो एक अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हो सकती है, दूसरा कि जो डिस्ट्रेस है कोविड के बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो फैमिलीज जो है वुमेन्स को भी प्रमोट कर रही है, एंड वुमेन खुद भी आगे आ रहे हैं इसके लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यूनियन एंड द लेबर NGOs, द स्ट्रक्चरल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर यूनियन, लेबर यूनियन के रिगार्डिंग ये आर्टिकल। तो यूनियन से रिलेटेड ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमको, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप, GS2 का पार्ट है, वी विल डिस्कस इट लेटर। सो thank you for being patient with me, and please watch this video. These videos are very important, especially for any competitive examinations. If you like my initiative, please follow us, please subscribe, like, comments, etc., whatever you wish to.
Thank you.